ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, यानी आपकी ईएमआई में बदलाव की उम्मीद अब बेहद कम नजर आ रही है। हालांकि आरबीआई ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि मौद्रिक बाजार में स्थिरता कायम करने के लिए जो पॉलिसी मेकिंग होगी उन दरों में बदलाव नहीं की जाएगी। By the growth inflation dynamic, even as external sector conditions have had a growing influence on policy calibration over the last 1 year. The current situation, moderating wholesale price inflation, prospects of softening of food inflation consequent on a robust monsoon, and decelerating growth would have provided a reasonable case for continuing on the easing stance. However, India is currently caught in a classic impossible trinity trilemma. We're having to forfeit some monetary policy discretion to address external sector concerns. The liquidity tightening measures instituted by the Reserve Bank over the last 2 weeks are aimed at checking undue volatility in the foreign exchange market. They will be rolled back in a calibrated manner as stability is restored to the foreign exchange market. Revert to supporting growth with continuing vigil on inflation. We've emphasized that the time available now should be used with alacrity to institute structural measures to bring the current account deficit down to sustainable levels. आरबीआई गवर्नर जी सुब्बाराव को आप सुन रहे थे और आरबीआई की तरफ से यही कहा गया है कि हाल ही में जो लिक्विडिटी है, तरलता घटाने के उपाय करने से मौद्रिक बाजार में कुछ सुविधाजनक स्थिति पैदा हुई। आगे भी सुनते हैं। The tail risks to global recovery had eased in the early part of the year, but that improvement was overtaken by the flash turmoil in the financial markets because of the announcement effect of the tapering of quantitative easing (QE) by the US Fed. In advanced economies, activity has weakened. Emerging and developing economies are slowing and are also experiencing sell-offs in their financial markets, largely due to the safe haven flight of capital. The dollar has appreciated rapidly on the back of market expectations of QE taper and the resultant increase in real interest rates. Consequently, currencies of emerging and developing economies have depreciated. Commodity prices have generally softened, but the price of crude remains elevated. Here at home, economic activity weakened in the first quarter of this year. Industrial production remained muted at 0.1% during April-May. In May, there was an absolute decline of 1.6%, spread across all constituent subsectors, barring electricity generation. Capital goods production continues to contract, reflecting deteriorating investment conditions. Fortunately, the monsoon arrived on time. आरबीआई गवर्नर को आप सुन रहे थे और जी सुब्बाराव का ये कहना है कि जो एमर्जिंग इकोनॉमी है उनके सामने किस तरह की चुनौतियां पेश आ रही हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में हालांकि एक रेजिलियंस है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सामने चैलेंजेस कई एक हैं और इन चैलेंजेस का हमें सामना करना है, और न सिर्फ सामना करना है बल्कि साथ ही साथ हमें एक बैलेंस लेकर के चलना है। विकास का एक बैलेंस होना चाहिए, इसके अलावा क्रेडिट का एक बैलेंस होना चाहिए, कमोडिटीज का एक बैलेंस होना चाहिए, जो हमारे यहाँ स्पेंडिंग है उसका एक बैलेंस होना चाहिए, हमारे यहाँ जो अर्निंग है उसका एक बैलेंस होना चाहिए, और इस बैलेंस को आरबीआई ने हमेशा ही ध्यान में रखा है और उसके बाद ही इस क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया गया है। मेरे साथ मौजूद है इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा इस वक्त मुंबई से फोन लाइन पर लाइव। अभिषेक, आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है, क्या खास है क्रेडिट पॉलिसी में?
देखिए, सबसे खास बात राशिद यह है कि क्रेडिट पॉलिसी में इस बार कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि तमाम रेपो रेट अन्य चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। साफ हो चुका है कि अब जो रेट है, विकास दर कहीं वो इससे दिखाई दे रही है और रिजर्व बैंक को लग रहा है कि अगर रेपो रेट और चेंज किया जाएगा तो शायद नुकसान हो सकता है तमाम चीजों को। इसको लेकर रिजर्व बैंक ने सभी तरह जो है सभी के सभी को उन्होंने कोई भी चेंज नहीं रखा हुआ है। जो पहले दरें थी सभी के सभी समान रखी गई है। जी देखिए, कहा यह जाता है कि आरबीआई जब भी किसी तरह की क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करता है, ये तमाम तकनीकी चीजें हो गई जो हमने बता भी दी और जो आरबीआई के गवर्नर भी बोल रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को ये इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जीडीपी और तमाम जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो बड़े बड़े शब्द होते हैं भारी भारी, वो समझ में नहीं आते। मुझे बहुत आसान शब्दों में ये बताइए, क्या आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में महंगाई को कोई जगह मिली है? महंगाई एक फैक्टर था और इसे लेकर के आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में क्या खास है, मुझे ये समझाइए। बिल्कुल, देखिए साफ है कि अगर क्रेडिट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होता तो साफ समझा सकता है कि महंगाई में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए ही आरबीआई यह जरूर क्रेडिट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं करती है और इसीलिए आरबीआई गवर्नर जो थोड़ी देर पहले बैंकर को संबोधित कर रहे थे, कहीं उन्होंने साफ कर दिया कि क्योंकि महंगाई को कंट्रोल में करना है तो इसलिए आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी होती है उसमें जो जितने भी दर है, चाहे सीआरआर हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, इसमें कोई बदलाव करना सही नहीं है। इसीलिए इन सभी रेटों में बदलाव नहीं किया गया ताकि महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके, ऐसा आरबीआई का मानना। हालांकि ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।